سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن جس کے سبب ہی کائنات تخلیق پائی۔ آج وہ ہستی زمین پر ظہور پذیر ہوئی جس کا نور سب سے پہلے خلق ہو چکا تھا۔ ربیع الاول میں آج کا دن آپ جہاں درود و سلام کا اہتمام کریں، وہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی ضرور کریں تاکہ ہم دین کے رہنما اصولوں کو اپنائیں اور اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ آج سیرت نبوی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف اسکالر موجود ہیں۔ جمیل راٹھور صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم جمیل صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کے دن کی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد۔ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ آج اس عظیم دن کی خوشیاں کس طرح منانی چاہیے، کس طرح اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت میں شمار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، کائنات ارضی و سماوی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں کو نازل فرمایا، اپنی بے شمار نعمتیں حضرت انسان کو عطا کی۔ انسان کو کرمنا بنی آدم کا اللہ تبارک و تعالی نے خطاب عطا فرمایا، خلقتہ بیدی، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ نسبت عطا فرمائی۔ اور اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا۔ لہٰذا اشرف المخلوقات انسانوں میں جو سب سے اشرف ترین افضل ترین نبی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے وہ ہمیں نبی عطا فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ لمحات ہیں، یہ 12 ربیع الاول کے لمحات ہیں، یہ اللہ کے شکرانے کے لیے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کا پورا تھیم اور اگر اس کا پورا اسپیکٹرم اگر آپ چیک کریں تو وہ یہ ہے کہ شکر الہی بصورت ذکر مصطفیٰ، یعنی میلاد النبی کنسسٹ آف ٹو تھنگس، نمبر 1 ذکر مصطفیٰ اور نمبر 2 شکر مصطفیٰ، اینڈ نتھنگ ایلس۔ اس کے علاوہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا آج غلامان مصطفیٰ پوری روئے زمین جہاں جہاں نبی کا غلام موجود ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے رب کریم، تیرا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ تو نے ہمیں برڈز میں نہیں بنایا، انسیکٹس میں نہیں بنایا، میملینس میں، ریپٹائلس میں نہیں بنایا، تو نے ہمیں اینیملس میں، جانوروں بہائم نے نہیں بنایا۔ اے اللہ، تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے اشرف المخلوقات انسانوں میں بنایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ تو نے ہمیں غلامان محمد مصطفیٰ میں بنایا۔ تو بالکل میں کہوں گا کہ آج کا دن اللہ کے بارگاہ میں تشکر و امتنان کے اظہار کا دن ہے، اور اس کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لبوں پر درود و سلام کے ترانے ہونا چاہیے، نعت کے ترانے ہونا چاہیے، ہاتھوں میں جھنڈے لہرائیں اور خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی۔ اندازہ کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا، قرآن انڈورس کرتا ہے غلامان مصطفیٰ کو، کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہمارے نبی کو، ہماری تعلیمات کے لیے۔ لہذا تعلیمات قرآن یہ ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے کوٹ کیا قرآن میں ہماری تعلیم کے لیے کہ آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن کو ہم جب بھی ہمارے اولین اور آخرین اس کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے رہیں گے۔ تو ایسٹر آج جو کرسچنز ہمارے بھائی مناتے ہیں وہ اسی یاد میں ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے، کہاں وہ کھانا جو پیٹ کی آگ بجھاتا ہے، اور کہاں وہ نبی آخر زمان جو جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلے ہمارے لیے بجھاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت عظمی آپ ہیں۔ جب وہاں کھانے پر عید منائی جا رہی ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے غلامان مصطفیٰ تمہیں تو سب کچھ عطا کر دیا، اپنا محبوب عطا کر دیا، لہذا تمہیں بھی خوشیاں منانا چاہیے، عید منانا چاہیے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں تشکر و امتنان کرنا چاہیے، شکرانے کی تسبیح پڑھنا چاہیے، نماز چراغا کرنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو ایک خطہ آزاد ہوا، ہندوستان 15 اگست کو ایک خطہ آزاد ہوا، امریکہ 4 جولائی کو ایک خطہ آزاد ہوا، لیکن ہم سب کے آقا جب دنیا میں آئے تو زمین کو بھی آزادی ملی، آسمان بھی آزادی ملی، گویا پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انڈیپینڈنس، فریڈم اور آزادی عطا فرمائی۔ یہ آپ کو جو
सुनते हैं ना, मैग्ना कार्टा, यूएनओ कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, यूएनओ, नो 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 सर, ये ह्यूमैनिटी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो दर्स है वो हमें इनसे नहीं मिला। जी 14 जी सदियां कबल हमें बिल्कुल बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु जी अलैहि बिल्कुल वसल्लम ने बिल्कुल बताया है जी कि जी ना हरम। बिल्कुल अल्लामा साहब सीरत नबी पर अमल पैरा होकर ही दीन और दुनिया दोनों की फलाह है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज का मुसलमान इल्म रखते हुए भी अमल से दूर दिखाई देता है। हमारे कौल व फ़ाल में तज़ाद है। हम इस मनफी रवैये को कैसे दूर कर सकते हैं? इस पर भी कुछ रहनुमाई फरमाइए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को कदरे दूसरे अंदाज से पेश करना चाहूँगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि माज़ी के अंदर मस्जिदें कच्ची थी, आज पक्की है। मस्जिदें पक्की हैं, लेकिन आपकी बात सही है, ईमान हमारे कच्चे हैं। माज़ी में मस्जिदें खाली रहती थी, आज भरी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जौहरे नमाज़ है, जो असले नमाज़ है, जो रूहे नमाज़ है, वो हम अपने अंदर यहाँ पर हम उसे शामिल नहीं कर सके। नमाज का मकसद क्या था? कि अल्लाह के हुज़ूर झुककर अल्लाह की बंदगी का अवार्ड लिया जाए। और अल्लाह का बंदा वो नहीं होता जो किसी का दिल दुखाए। अल्लाह का बंदा वो नहीं होता जो झूठ बोले। अल्लाह का हकीकी बंदा वो नहीं होता जो किसी पर जुल्म करे। अल्लाह का हकीकी बंदा वो नहीं होता दूसरों के हुकूक गसब कर ले। तो ये सारी चीजें नमाजियों के अंदर भी मौजूद है, हाजियों के अंदर भी मौजूद है। तो इसकी वजह यह है कि आज हमने इबादत की कसरत तो कर ली है, लेकिन इबादत का जो मग़ज़ है, इबादत की जो तालीमात है, वो हमने अपने दिल में नहीं उतारी। यहाँ सुपरफिशियल मौजूद है, नमाज पढ़ी उसके बाद चले गए। नहीं जनाब, ये आपका पैगाम आपके कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में और डीप कॉन्शियस हर जगह पर होना चाहिए। हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद यहाँ पर कॉन्शियस में मैसेज आया और फिर उठाकर उसे पीछे स्टोर में डीप कॉन्शियस में तहत शऊर में भेज दिया। नतीजा ही निकला कि हम शऊरी तौर पर हर वो काम करते हैं जो तालीमात मुस्तफ़ा के खिलाफ है, जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ है। नमाज तो इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज तो बुराई और बेहयाइयों से मना करती है, हर रोज मना करती है। हर नमाज में कहा जाता आओ भलाई की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम जाते हैं लेकिन वापस कामयाबी लेकर नहीं आते। लेकर क्यों नहीं नहीं? आते, और यही आपने बड़ी अहम बात की अल्लामा साहब। अच्छा, आज ये भी चीज़ एक है कि हमारे बच्चे मसाजिद से दूर हैं। नौजवान नस्ल के लिए काम काज इतना बढ़ गया है या इतना बढ़ा लिया है कि हफ्ते में एक दिन भी मस्जिद को वक्त नहीं दिया जाता। नौजवान नस्ल को सुन्नत पर अमल करवाने के लिए जो बुज़ुर्ग हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, और क्या हम अपने बच्चों को असल सुन्नत नबवी की तालीमात देने में कामयाब हुए भी हैं? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है साहब। हम बचपन में जब थे तो हमारे वालिदैन हमें ज़बरदस्ती लेकर मस्जिद में जाते थे, और हम मस्जिद में जाते थे, कुछ शरारतें करते थे, कुछ दीन को सीखते थे। आज हमारे उलमाए किराम की तरफ से बड़ी पाबंदी की जाती है कि साहब मस्जिदों में बच्चों को ना लाना। नो, मैं इसके शदीद खिलाफ। मैं कहता हूँ बच्चों को लाएं, अपने साथ खड़े करें। एक जुज़वी तौर पर ज़रूर खलल वाक़ई होगा, लेकिन इज्तिमाई फ़ायदा ये होगा बच्चा जब आपके साथ खड़ा होगा। हाँ, आप सफ़ों के अतराफ़ में खड़े हो जाएँ। बच्चा जब आपके साथ खड़ा होगा, तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, मस्जिद में शोर-ओ-शराबा नहीं होगा, बहुत अच्छी और बात। आपके साथ खड़ा होकर वो नमाज़ पढ़ना सीखेगा। इसलिए कि इस्लाम की पहली इबादत और मजमूई इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज़ है। लिहाज़ा जब वो नमाज़ पढ़ना सीख जाएगा, तो मैं समझता हूँ जब बड़ा होगा तो अब वो पाबंदे सलासिल होगा, और नमाज कभी न कभी उसके दिल के दरवाजे पर जरूर दस्तक देगी। नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से मना करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसे रोकती है, और यकीनन अच्छे नतीजे निकलेंगे। नौजवानों को ये चाहिए कि सब कुछ छोड़कर, आज आप देखिए फिरका वारियत भी एक बिल्कुल एक तरीके से एक यूं समझ लीजिए साइलेंट बॉम्ब है जो फटता रहता है, आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन नौजवान कंफ्यूज है, बोलते हैं कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन, हमने इस दिन को बड़ा पेचीदा बना दिया। तो महराब और मिंबर से जरूरत इस बात की दीन को आसान करें। भाई दीन इस्लाम आसान है, प्रैक्टिकल रिलीजन है। ये दूसरे मज़ाहिब और अदियान की तरह ये ऐसा नहीं कि इसको बस हफ्ते में एक दफा जाकर प्रैक्टिस कर ली जाए और उसके बाद सब दीन पीछे और हम आगे, ऐसा नहीं है। इस्लाम इज द मोस्ट सॉफ्ट, इजीएस्ट, प्रैक्टिकल, मॉडरेट एंड मॉडरेस्ट रिलीजन ऑफ दैट गॉड। तो इस्लाम तो जो है सबसे मॉडरेट रिलीजन है। लिहाजा इस रिलीजन को अडॉप्ट करना बहुत आसान है। बच्चों को लाएं, नौजवानों को सिखाएं कि दीन को अडॉप्ट करो। और देखिए बदकिस्मती हमारी ये हुई कि जहाँ हमने सोशल मीडिया पर अपनी हर चीज डाल दी, मुझे लगता है कभी कभी हमने दीन को भी सोशल मीडिया के हवाले कर दिया। बेशक। अब मुझे पर बहुत सारी जनाब पोस्ट आती है कि साहब ये बुखारी की हदीस में ये फरमाया गया, जब तहकीक करो तो पता चला बुखारी की सिरे से हदीस ही नहीं है।
हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मंसूब ऐसे ऐसे अक़वाल सोशल मीडिया पर आते हैं, सिरे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा फेक न्यूज़ भी है, फेक दीन भी पढ़ाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को सबसे अहम काम करने की ज़रूरत ये है कि हफ्ते में एक दिन कम से कम अर्ली मस्जिद में आ जाएं, 1 बजे के करीब आ जाएं। अगर 2 बजे नमाज होती है, 1 घंटा मस्जिद में स्पेंड करें। रमज़ान आए तो रमज़ान में मस्जिदों में स्पेंड करें। जब अल्लाह के घर से जुड़ेंगे, दीन सीखेंगे, तो इंशाल्लाह बेरहमी से भी वालिदैन की फर्माबरदारी भी करेंगे, दोस्तों के हुकूक भी अदा करेंगे। और इसके साथ साथ अल्लामा साहब, ख़वातीन के लिए सीरत नबवी में कौन कौन से पैगामात हैं? हम देखते हैं कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसमें औरत को तमाम हुकूक दिए गए हैं, और जब रसूल खुदा की अमली ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमना सलामुल्लाह अलैह का अजीम किरदार मिलता है, और आपकी ज़ौजा बीबी खतीजा का किरदार, जनाब उम्मे सलमा का किरदार, और फिर आपकी बेटी बीबी फ़ातिमा ज़हरा का किरदार। रहनुमाई फरमाइए कि हमारी ख़वातीन के लिए आज के दिन में क्या अहम पैगाम शामिल है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लाम ही तो वो वाहिद मजहब है, वाहिद दीन है कि जिसकी किताब में कुरान का सबसे बड़ा चार्टर, सबसे बड़ी सूरह बकरा के बाद सूरह निसा ख़वातीन के नाम पर है, सूरह मरियम ख़वातीन के नाम पर है, सूरह आले इमरान वो हज़रत मरियम के वालिदैन के नाम है। इसी तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद ने औरतों को एड्रेस किया, जहां मर्दों को इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिक़ीन वस सादिक़ात वस साबिरीन वस साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात, आगे पढ़ते चले जाइए। तो अल्लाह ने जहां अल्लाह के हबीब ने मर्दों को हुकूक दिए, उससे बढ़कर औरतों को हुकूक दिए। वो पिसी हुई औरत मुआशरे के अंदर, उसका सर फख्र से बुलंद कर दिया। तो मैं समझता हूँ ख़वातीन निस्बतन मर्द से ज्यादा मजहबी रुझानात रखती हैं, लेकिन हमने साहब उसे लिफाफे में बंद करके कहीं बिठा दिया है या शमाए महफिल बना दी है। यूरोपियन की तरह शदीद सर्दी है, लेकिन ख़वातीन को अपनी जरा नेकेड लिबास पहनकर आना है, अपनी आराइश और ज़बाइश दिखानी है, पर सूटेड बूट होकर आ रहे हैं, और वो माइनस डिग्री के अंदर भी वो लिबास पहनने पर मजबूर है। तो उसे जीनत महफिल और बना दिया है। उसे अपनी घर की जीनत बनाइए, उसे कॉलेजेस में भेजिए, डॉक्टर्स बनाइए, इंजीनियर्स बनाइए, माशरे में उनका भी इतना ही हक है। हाँ, लिमिटेशन जरूर होना चाहिए, जो इस्लाम ने शरई हुदूद हमें दी वो जरूर होना चाहिए। और आपने बात की ख़वातीन की, तो पिछली अगर अक़वाम में जाए ख़वातीन का कोई किरदार नजर नहीं आता। लेकिन यकीनन इस्लाम ने जितने हुकूक दिए हैं ख़वातीन को, और जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी में हमने ख़वातीन के साथ उनका अमल देखा है, वही हमारे लिए मशअल राह है। बहुत शुक्रिया अल्लामा जमील राठौर हमारे साथ मौजूद थे। तो आज बहुत ही पाक दिन है, बहुत ही साफ दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, वो दिन के जिस दिन के लिए इस दुनिया का खल्क हुआ था, इस कायनात की तख्लीक हुई थी, वो दिन है आज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।